Hello students, my name is Amruta Gade and I am teaching you the engineering mechanics का subbit that is friction. Friction is developed everywhere. That's why the system it is in a equilibrium or balance condition. Then let's see the details about that friction. Firstly, its definition. The force which opposes to the motion of the body on rough surface is called friction or frictional force. It is denoted by F. Its unit is Newton or dyne. Then consider that rough horizontal surface. On that we are acting that or we are resting that rectangular block having weight mg. This rectangular block is resting on that rough surface. That why that this rough surface is acting the some normal reaction, that is R, but it is in a upward direction. Then this rectangular block is having some force at the right side, means P. Then if we are applying the force P on the any side of that rectangular block, then motion is in the right side. Then if the motion it is on a right side, then frictional force is developed in a left side. Yes, definition देखो क्या है. The force which opposes to the motion of the body on rough surface is called friction. इस मोशन के अपोजिट में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रिक्शन बोलेंगे. तो फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है? यस, ये दो सरफेस है, ये दो ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक के जो सरफेसेस है, इट हैविंग सम रफनेस एज वेल एज इरेगुलरिटीज. दैट्स वाई they are interlocked with each other, and this interlocking property which leads to that frictional force. Yes, consider this boy is pushed that block in a right direction, then frictional force is developed in a left direction due to the interlocking property between that particles. Next we have to see the types of friction. First type is static friction. If the body experiences a frictional force at rest condition is called the static friction. Consider that rectangular block which is resting on that rough surface. This rectangular block having the weight mg and it is in a downward direction, and that normal reaction it is in a upward direction. It is exerted by that rough surface. If we are applying the force at the right side of that block, then frictional force is developed at the left side. This block it is not in a motion condition, it is in a rest condition. That's why it is called the static friction. Static friction is always greater than dynamic friction. स्टैटिक मीन्स व्हाट? रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन. इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक. डायनामिक मीन्स व्हाट? द बॉडी इट इज इन अ मोशन कंडीशन. तो मोशन कंडीशन में कम फ्रिक्शन डेवलप होगा क्योंकि वो पहले से मोशन कंडीशन में है, तो फ्रिक्शन उसको जो अपोज है वो कम मिलेगा एज कंपेयर टू दैट स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज डिनोटेड बाय Fs. अब F suffix S means what? S is related to what? Static friction. According to law of friction. law of friction के कौन कौन से रहते? वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, उसका रिलेशन क्या है किसके साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या नहीं, वो हुआ लॉ ऑफ फ्रिक्शन. तो उसमें एक लॉ है Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. देन Fs इज इक्वल टू म्यू आर. तो म्यू क्या है? म्यू इज नथिंग बट दी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट मोशन. अब देखो ये बॉडी है, रेस्ट कंडीशन में है, ये एनिमल है, रेस्ट कंडीशन में है. अगर उसको पुश और पुल करेंगे तो वो जो एक्सपीरियंस करेगा, ये जो एनिमल जो फ्रिक्शनल फोर्स वो मोशन को अपोज करेगा, तो उसको बोलेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ
Maximum or limiting frictional force to the normal reaction is constant for the surface is called coefficient of friction, and it is denoted by mu. It is unitless. Why it is unitless? Because it is a ratio of forces. That's why it is unitless. Forces का ratio है तो unit जो रहता है forces का unit cancel हो जाएगा ratio में, इसलिए it is unitless and dimensionless physical quantity. The value of mu depends on material and nature of the surface in contact. अब ये जो mu है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? बॉडी ड्राई है और वेट है. अगर ड्राई है बॉडी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दैट वेट. नेक्स्ट है जो सरफेस है वो स्मूथ है या रफ है. अगर रफ रहेगा तो इरेगुलरिटी बढ़ जाएंगी, इरेगुलरिटी ज़्यादा है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा आएंगी एज कंपेयर टू स्मूथ. स्मूथनेस की वजह से क्या होता है, उसकी जो इरेगुलर प्रॉपर्टीज़ है वो कम हो जाती है, वो रेगुलर शेप में आता है, इसलिए स्मूथ सरफेस को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहेगी. इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन दी पॉलिश्ड और नॉन पॉलिश्ड. मीन्स व्हाट? अब ये जो सरफेस रहता है अगर पॉलिश किया तो उसका जो रफनेस है वो कम होता है, इसलिए उसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पॉलिश सरफेस के लिए कम रहेगी एज कंपेयर टू दैट नॉर्मल रिएक्शन. नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस टू द मोशन ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अब फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आएंगी? जब रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हमने क्या किया, फोर्स ऐड किया, फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है हम इंक्रीज कर रहे हैं. इंक्रीज करने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. बट क्या हो रहा है, वो जो ब्लॉक है वो रेस्ट कंडीशन में ही है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है. मीन्स उस जो ब्लॉक है उसको क्या मिल रहा है, अपोज मिल रहा है मोशन को. बट एट द मैक्सिमम पॉइंट में क्या होता है, द बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, तब वो मैक्सिमम वैल्यू आती है फ्रिक्शनल फोर्स की, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट टाइप है डायनामिक फ्रिक्शन. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन. इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस. फ्रिक्शनल फोर्स है एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, बाय द बॉडी इन मोशन. मोशन कंडीशन में जो बॉडीज है वो एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको बोलेंगे हम डायनामिक फ्रिक्शन. तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, नेचर ऑफ द सरफेस. मीन्स व्हाट, सरफेस स्मूथ है या रफ है. फॉर एग्जांपल अब देखो व्हीकल है, व्हीकल रोड सरफेस के ऊपर, रोड के ऊपर जा रही है, तब क्या होता है, अगर रोड सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होता तो वो जो व्हीकल रहता है वो बैलेंस नहीं रहता, वो स्लिप हो जाएगा अगर वो स्मूथ होगा तो. बट रफ है इसलिए क्या हो रहा है, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है. किसके बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, दैट व्हील्स ऑफ दैट व्हीकल एंड द रोड सरफेस. फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, वो थोड़ा बहुत उसको अपोज कर रहा है, किसको, मोशन को, इसलिए दिस व्हीकल इट इज इन अ बैलेंस कंडीशन. नेक्स्ट इट इज डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ मोशन. मीन्स मोशन स्लाइडिंग है या रोलिंग है. नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर भी रहेगा डिपेंड. क्यों? नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वो जो सरफेस रहता है वो अपोजिट में कितना फोर्स ऐड करता है उस ब्लॉक के ऊपर, वो हुआ नॉर्मल रिएक्शन. तो वो कितना फोर्स ऐड करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सरफेस स्मूथ है या रफ है. दैट्स वाई the dynamic friction it is also depend on that normal reaction. It does not depend on the velocity of the body. आपने व्हीकल के एक्सीलरेटर कम किया या ज़्यादा किया, उससे उस फ्रिक्शनल फोर्स से कुछ इफेक्ट नहीं होता, जितना मतलब वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आनी चाहिए. इट इज डिपेंड ऑन दी व्हाट, रफनेस, नॉट ऑन दी वेलोसिटी. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन. द फर्स्ट टाइप इज sliding friction. The friction experienced by body when they are sliding over the another body is called the sliding friction. Yes, this animal is in a moving condition. This is the example of dynamic friction.
they experience this frictional force by the opposite direction of the motion, then this friction is called dynamic friction. Yes, it is an example of sliding friction. This boy it is slide over that inclined surface, they experience some force, is called the sliding friction. Next, it is rolling friction. Rolling friction means the frictional force experienced by body when it roll over the another body is called the rolling friction. फॉर एग्जाम्पल देखो, इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस के ऊपर व्हीकल्स पास हो रही है, तो उस व्हीकल के व्हील्स में और वो इंक्लाइन सरफेस के बीच में जो भी फोर्स डेवलप हो रहा है, जो भी अपोजिशन आ रहा है, मोशन को जो अपोजिशन आ रहा है, उसको बोलेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे थ्रू व्हाट, अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में. अगर हमने ब्लॉक लिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी अगर वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड हमने इंक्रीज किया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस. देन O to A which related to what, it is in a rest condition. इंक्रीज हो रहा है, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. उस मोशन को अपोजिशन मिल रहा है, इसलिए बॉडी रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी. इसलिए द पार्ट OA ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन. द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, frictional force is also increases during the static condition, and this OA which represent the static friction. Next, after that applied force increases, body just start to move. At A point, the maximum frictional force is develop, is called limiting frictional force. A point जो है, A point के बाद में क्या होगा, अप्लाइड फोर्स हमने इंक्रीज किया, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ए पॉइंट के बाद में इंक्रीज नहीं होगा, इट इज डिक्रीजेस. एट द ए पॉइंट द बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव. एट दैट ए पॉइंट बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट होना मतलब मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगा. तब वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल जो डेवलप हो रहा है उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट, after that means what, B to C. After that applied force increases, frictional force does not increase. As portion BC curve, it is parallel to x axis, the body it is in a motion condition, that is dynamic friction. अगर हमने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट ही रह रही है, मीन्स बॉडी मोशन कंडीशन में है, तो इसलिए उसको बोलेंगे हम डायनामिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट वी हैव टू सी Coulomb's law of friction. Then consider that rectangular block. This rectangular block is rest on that rough horizontal surface. तो हमने फोर्स P अप्लाई किया है राइट साइड में, तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, उसको अपोज मिलेगा, उस फ्रिक्शन जो अप्लाइड फोर्स है उसको अपोज करेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स, बट इट इज इन अ अपोजिट डायरेक्शन. तो फर्स्ट लॉ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग दी सरफेस. फ्रिक्शनल फोर्स हर बार कहाँ पे डेवलप होता है, अलोंग दी सरफेस. अब ये भी लॉ होगा कि जो अप्लाइड फोर्स है और मोशन है, मोशन के अपोजिट साइड में क्या रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स रहता है. नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग विथ अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स जो है अगर इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा, अप्लाइड फोर्स डिक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी डिक्रीज होगा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग विथ अप्लाइड फोर्स. नेक्स्ट लॉ है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल रिएक्शन, जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में देखा था. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन है. इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, सरफेस जो है वो स्मूथ है या रफ है, उसके हिसाब से वो एक दूसरे को डिपेंड करता है. नेक्स्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया एंड द शेप ऑफ द सरफेस. ये जो
सरफेस है उसका एरिया कितना भी बड़ा है या कम है उसके हिसाब से वो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता. इट इज डिपेंड ऑन द इरेगुलरिटीज एज वेल एज रफनेस ऑफ दैट सरफेस एंड ऑल्सो इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप कौन सा भी है, रेक्टेंगुलर है, ट्रापेजोइडल है और सर्कुलर है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता. नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन. हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, उसके ऊपर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, फोर्स अप्लाई किया राइट साइड में, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे डेवलप होगा? लेफ्ट साइड में. उसका वेट है mg, w है बट उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम mg से. ये जो सरफेस है वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा अपोज डायरेक्शन में एज अ नॉर्मल रिएक्शन. तो ये जो रिजल्टन है किसका? रिजल्टन नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टन है उसका एंगल विथ व्हाट? विथ नॉर्मल रिएक्शन is called angle of friction. The resultant of normal reaction and frictional force with what? With normal reaction is called angle of friction. तो क्या आएगा उसका फॉर्मूला? tan phi. अगर हमने tan phi देखा मीन्स अगर हम tan phi अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री tan phi हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? tan phi इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. तो अपोजिट साइड में क्या है? अब इसके अपोजिट में क्या है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये पैरेलल है इस साइड को, इसलिए F आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा. फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन मीन्स फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय फ्रंट साइड और अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. तो फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स किससे डिनोट करते हैं हम? F से. और नॉर्मल रिएक्शन किससे डिनोट करते हैं? R से. तो F इक्वल टू क्या है? म्यू आर. हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखा. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन है. तो F की क्या वैल्यू आएगी? F की वैल्यू आएगी म्यू आर डिवाइडेड बाय R. तो म्यू आर गेट कैंसल, तो क्या रहेगा? म्यू. तो tan phi इक्वल टू क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट हम देखेंगे angle of repose. Minimum angle at which the body just start to move down due to its self weight is called angle of repose. रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया हमने. रेक्टेंगुलर ब्लॉक किसके ऊपर रेस्ट है? अब यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है बट उसके पहले कंसिडर करो ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो कहाँ पे रेस्ट है? हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का अगर हमने एंगल इंक्रीज किया, यहाँ पे क्या है? रेक्टेंगुलर ब्लॉक रेस्ट है. तो एंगल इंक्रीज करने के बाद वो कौन से एंगल को रेक्टेंगुलर ब्लॉक नीचे स्लाइड होता है? नीचे क्या होता है? वो जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन एट दैट एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. अब यहाँ पे कौन सा हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया? क्या नहीं किया. ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट इट्स जस्ट स्टार्ट टू मूव डाउन. दिस मिनिमम एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज.